આજે અમે વાત કરીશ ફેટી લીવર સિરોસિસ અને હેપેટાઇટિસનો માત્ર કંટ્રોલ જ નહીં, તમે ક્યોર કેવી રીતે કરી શકો છો એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આજે આપને અમારે યોગ શીખવવાનો છે. અને યોગ કરીને અને આયુર્વેદની નાનકડી વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે આ ફેટી લીવર સિરોસિસ હેપેટાઇટિસથી લોકો મુક્તિ પામી છે એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આપને યોગ બતાવીશ. સૌથી પહેલાં મંડૂકાસન. આ 15 આસનો છે અને એક આસન 2 મિનિટ 5 મિનિટથી માંડીને જ્યારે રોગ બહુ અસાધ્ય થઈ જાય તો અમે 10 મિનિટ સુધી કરાવીએ છીએ. અને યોગાસન પ્રાણાયામ અને ધ્યાન સાથે કરાવીને અસાધ્ય રોગો અમે મટાડે છે. સૌથી પહેલાં મંડૂકાસન. અને અમારા ગુજરાતથી જ આ ભાઈ, શું નામ તારું? હા, શ્યામલ, શું થયું હતું? માઇકમાં બોલો તો. સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રણામ. હા, 3 વર્ષ પહેલાં ઓવર ઇટિંગ, બહારનું ફાસ્ટ ફૂડ ખાઈને મને લીવરમાં એક પ્રોબ્લેમ થયો હતો અને નાના હાથમાં જો વાલ આવે છે, વાલ પણ એની જે નળી આવે ખુલી ગઈ હતી. તો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મને નહોતું લાગતું, બહુ હેરાન થતો હતો. પછી મારા ફાધર ઇન લો તો વર્ષોથી યોગા કરે છે, તો મેં યોગાનું માધ્યમ એના ફાધર ઇન લો લક્ષણભાઈ, એને પણ ફેટી લીવર હતું, એનો પણ લીવર ખરાબ થઈ ગયો હતો, એ પણ યોગથી સારું કર્યું. અને અમારો શ્યામલ જે દીકરો અત્યારે અમારી જે કંચનબેન સાથે પરણાવી ગયા તો આ છોકરો પણ યોગની શરણમાં આવે. પછી શું થયું? તો મારા ફાધર ઇન લોએ મને અમુક દવાઓ સજેસ્ટ કરી, યોગ સજેસ્ટ કર્યા. એટલે અનુલમ વિલમ, કપાલભાતિ, ભસ્ત્રિકા અને લિપિડોમ અને લિવોગ્રીટ 2 ટેબ્લેટથી મને એકદમ ક્યોર થઈ ગયું 3 વર્ષની અંદર. અત્યારે એકદમ સરસ છે. હા, અત્યારે એકદમ ફાઇન છે. મને વિશ્વાસ ન થયો કે થઈ જશે, પણ ઓકે થઈ ગયું. તો આ આપણે જેને કોલેસ્ટ્રોલ વધેલો હોય એને આપણે લિપિડોમ આપીએ છીએ, લિવોગ્રીટ, લિવામૃત પેટ માટે આપીએ છીએ. આ છોકરો લીધું અને યોગાસન કર્યા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કર્યું અને આવું સારું થઈ ગયા. તો લક્ષ્મણભાઈ એવું જ છે. તમને ક્યારે થયું હતું પેટનું, લીવરનું? મને લગભગ 18-20 વર્ષ પહેલા. 18-20 વર્ષ પહેલાની વાત છે. મંડૂકાસન 2 જાતનું છે. ચલો આ કરો. પછી તો 18-20 વર્ષ પહેલા મને અંગ્રેજી દવાઓ ખાવાથી લીવર ડેમેજ થઈ ગયો. તો પછી મને ખબર પડી કે સ્વામીજી મહારાજ યોગ કરાવે છે. તો મેં યોગ કર્યું, સર્વકલ્પવાત લીધું અને લીવા અમૃત વધારે લીધી. એ 2 વનસ્પતિઓ અને યોગ કરવાથી મેં પૂરો લીવર આપણો ક્યોર કરી નાખ્યું. મને ડૉક્ટર કહેતા હતા કે લીવર ટ્રાન્સફર કરાવવું પડશે, લેકિન મેં નથી કરાયું. અને યોગથી, આયુર્વેદિકથી મેં આપણા પૂરા લીવરને ફરીથી નવો કરી નાખ્યું છે. આ લક્ષ્મણભાઈ તો ગુજરાતમાં 5-10 હજાર માણસોને યોગ શીખવાડે છે. લગભગ આખા ગુજરાતમાં, વડોદરાથી માંડીને અને એના ગામડામાં પણ અમે ગયા હતા. કઈ ગામડું છે આપણો? તહેસીલ હાલોલમાં પણ અમે યોગ કર્યું છે. વડોદરા આવી ગયા છે. વડોદરા તો આ બધાને યોગ શીખવાડે છે અત્યારે. હા, અને એ તો લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે, એકના આપણે સાંભળીએ અને આ યોગ કરતા કેવા સારા થાય છે લોકો. અને ઓછત તો બસ આ 3 મેન છે. આ ભૂમિયાવલા, આ પુનર્નવા અને આ મકોઈ. આ તો એકદમ લીલી ઔષધિઓ છે. અને કુકાળો પીવાનો હોય તો સર્વકલ્પ. આ 3 ઔષધિઓ છે. અને જ્યુસ, એ જ્યુસ પણ બનાવી નાખો. આમાં જ્યુસમાં શું કરવાનું? મંડૂકાસન, પછી શશકાસન. ચલો, બહુ આશીર્વાદ. અને આમાં દાડમ, ગાજર, ચુકંદર, એલોવેરા, ભૂમિયાવલા, પુનર્નવા, મકોઈ એક સાથે જ્યુસ કરી લેવાનું. એમાં થોડુંક સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે તમે એમાં નાખી શકો છો થોડોક મુનક્કાંજી. ગળો સાથે નાખીને પીવી લે. કોઈને પીવામાં તકલીફ ન તો જુદું કરી લેવાનું. થોડુંક આમ કડવું હોય ને. મંડૂકાસન, શશકાસન. અને આ તો વાત થઈ ફેટી લીવર સિરોસિસ. આ સુશીલા અને એના હસબન્ડ સાથે બેસેલા છે.
બહુ ભણેલા છે, પણ યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, અર્ધમત્સ્યિન્દ્રાસન, ગોમુખાસન, આ ક્રમશઃ અમે આ બધું 1-2 મિનિટથી માંડીને 5-5, 10-10 મિનિટ આ બધા કરવા જ છે. અને કરતાં કરતાં શું ફાયદો થયો છે इसको सुशीला को देना माइक. हाँ स्वामी जी प्रणाम. मंडू योग मुद्रासन करो. हाँ मेरे को लीवर सिरोसिस हुआ था और फैटी लीवर भी था. लीवर में नोड्यूल्स थे. मैंने लौकी का जूस और एलोवेरा, गिलोय, हल्दी का, कच्ची हल्दी का जूस, ये सब आयुर्वेद के किए हैं और मेरा लीवर लगभग ठीक हो चुका है. और कहाँ कहाँ इलाज कराया था सुशीला? मैंने इलाज चंडीगढ़ भी दिखाया है पीजीआई में, और ILBS दिल्ली डॉक्टर सरीन से कराया इलाज. આ ડોક્ટર સરીન બહુ મોટા લીવરના ડોક્ટર છે, આખા એશિયાના સૌથી મોટા ડોક્ટર છે. એની પાસે પણ એ બધા એ ડોક્ટર તો યોગ અને આયુર્વેદના પણ સમર્થક છે, પણ એલોપેથીની સીમા છે. એલોપેથીમાં કોઈ પણ રોગનું પરમાનન્ટ ઇલાજ નહીં. અને એને અત્યારે લીવર સિરોસિસ, તો તમને तो લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું કીધું હતું ને? हाँ जी, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया था मुझे. और उससे बच गए. हाँ जी. और तुम्हारे हस्बैंड को देना? हैं? दिल्ली में तो मेरे को ये बताया गया था 50 करोड़ लोगों को फैटी लीवर है हिंदुस्तान के अंदर, और कोरोना सब भूल जाएंगे जब ये सारे 50 करोड़ लोग इकट्ठे मरेंगे, क्योंकि लीवर जो है 5% तक भी काम करता रहता है, लोगों को पता ही नहीं चलता. जब हाँ, आते लीवर डॉक्टर के पास, बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है. माने ये तब तक आदमी का साथ देता है जब तक पूरी तरह से आदमी मर न जाए. जब डॉक्टर के पास जब पहुंचेंगे, जब लीवर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अब इतने सारे लोगों का जो लीवर जो है वो डैमेज इकट्ठा लीवर होगा. के फंक्शंस तो पूरी तरह से 100% ठीक तो ठीक कह रहे हैं, 50% लोगों के ही हैं. और मतलब एज ए डिजीज हर चौथा पांचवा आदमी फैटी लीवर आदि से पीड़ित है. तुमने क्या पढ़ाई की है? PhD केमिस्ट्री हूँ. PhD केमिस्ट्री है, और अपनी पत्नी की केमिस्ट्री ठीक नहीं कर सका. नहीं, मैंने ही किया है. मेरे को सारा आपके देख करके प्रोग्राम सारा वीट ग्रास, मेरे घर के अंदर वीट इन्होंने ग्रास, मेरी बात मानी और अपनी पत्नी की बिल्कुल सारा, पूरी केमिस्ट्री ठीक कर ली. बिल्कुल सारा है. ये भी MSc बोटनी है. अच्छा, ये भी MSc बोटनी. तो घर में लगा रखे होंगे तुमने? सारी चीजें घर में लगाई हैं. वीट ग्रास सारे लोग, पड़ोस में सारे लोग लेके जाते हैं मेरे से. घिया, लौकी लगाई है, काली तोरी लगाई है, ये इन्हीं का जूस पिलाया है. क्या बात है. हाँ, सब्जी ये तो खिलाई, जूस पिलाया है. अब तो ये सबको अच्छा कर रहे हैं. हाँ, चलो खूब आशीर्वाद है. ये तो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कराते कराते ये अगला भाई भी बैठा है, ये भी लीवर सिरोसिस, ये भी लीवर ट्रांसप्लांट वाला ही था. उसका तो खर्चा, क्योंकि वो सरकारी डॉक्टरों ने बताया था तो 70 लाख, इसको तो 1.5 करोड़ बताया था. नीचे माइक ले. वक्रासन. हाँ गुरुजी, શું બતાવ્યું હતું તમને? ડૉક્ટરે શું કીધું? यही कि लीवर पूरा ही खराब हो गया है. 1 महीने का टाइम है आपके पास. 1 महीने का टाइम. ये बात कब की है? ये 2 साल पहले की बात तो है. डेट तो एक्सपायरी कर दी तूने. तो फिर बस कहाँ आ गए? बस सीधा फिर यहाँ आ गया मैं. 2 वर्ष पहले आ गया था. हाँ, 2 साल पहले ही आ गया था. हाँ, फिर? हर साल आता हूँ मैं. फिर बस यहाँ आके फिर यही योग करके अपनी यहाँ की अब ये रोज यहाँ ताज़ा पीना भी, जब तक योग ग्राम में हो. ये भूमि बिल्कुल आंवला, ले रहा हूँ. ये मकोई, ये सब फ्रेश है, यहाँ भी खूब उगा हुआ है. बिल्कुल ले रहा हूँ. और यहाँ ताज़ा ही मिलता है, तो ऐसे उखाड़ करके, धो करके, चबा करके अच्छा. और फिर पी लिया करो, अच्छा. तो बेस्ट होता है. अच्छा. लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं, कोई कूटेगा, पीटेगा, दूसरा पिलाएगा, ऐसे हर एक चीज़ को मतलब ऐसे ही देखते रहते हैं. अरे उखाड़ करके अपना चबा करके खा लो, ठीक है. पूरा ठीक होके चला जाएगा पहले ही दिन से. बिल्कुल. एक भाई आया था मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले, बोले जी मेरा तो SGOT SGPT उसके 100 हो रखे. हाँ. पहले ही दिन मैंने पिला दिया. बोले जी आज तो ऐसे कड़ाके की भूख लगी, मैंने पड़ोसियों का भी खा गया. अरे मैंने कहा इतना मत कर, एकदम से इतना जबरदस्त लाभ होता है. हाँ, पवन मुक्तासन. चलो, ये तो करते करते ही योग से क्या हुआ है आपको, ये खाली अनयोग से योगથી શું થાય છે એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ અમારે સાથે છે. જી ભાઈ, શું નામ છે? जी संजय सिंह, वैशाली जिला बिहार से. जी. मुझे 10 साल पहले 3 बार जॉन्डिस हुआ था. 3 बार? 3 बार. उसके बाद मैं दिल्ली में डॉक्टर सरीन साहब के यहाँ दिखाने के लिए गया था, और वहाँ जाने के बाद जो मेरी बायोप्सी भी हुई थी, सब प्रकार का जांच हुआ, तो पता चला कि लीवर फाइब्रोसिस 3 है. और
उसके बाद कुछ दिन के बाद और वो रिपोर्ट और भी ख़राब हो गई थी। लेकिन जब मुझे आचार्य श्री से एक बार मिलने का ये हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि सर्वकल्प क्वाथ पियो और दबा के प्राणायाम करो। और मैं ऐसे तो प्राणायाम पहले से करता भी था। मैंने सर्वकल्प क्वाथ का प्रयोग शुरू किया और भूमि आंवला और पुनर्नवा उसका रस निकाल के, ताज़ा रस निकाल के, गिलोय का ताज़ा रस निकाल के और ये एलोवेरा का ताज़ा रस निकाल के मैंने पिया और उससे लगातार मेरे सुधार मुझे आना शुरू हो गया। और बाद में तो डॉक्टरों ने विश्वास नहीं किया। वो बार बार जब टेस्ट होता था कहते थे इतनी जल्दी ये नहीं ठीक हो सकता है, वो रिपोर्ट में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन मैं तो जान रहा था कि स्वामी जी का निर्देश मैं टीवी पर देख के फॉलो कर रहा था और उस प्रकार से मैंने काम किया। और धीरे धीरे इस बार जब मैं दिखाने गया तो उन्होंने बता दिया कि आप लगभग मुक्त हो गए हो इस बीमारी से। તો આ રિપોર્ટ સાથે અને ડૉક્ટર શ્રીને એશિયાના સૌથી મોટા ડૉક્ટર છે એની પાસે એને ટ્રીટમેન્ટ ચાલતું હતું અને એ ટેસ્ટિંગ તો ત્યાં કરાતા હતા ને ટ્રીટમેન્ટ અમારા લેતા હતા। ઉત્થાન પાદાસન, લોકાસન, સેતુબંધાસન, પાદાંગુષ્ઠાન, આસાસ પ્રશાસન, સર્વાંગાસન, આસન તો બધું તો કરવું જ છે અને સાથે સાથે યોગ આયુર્વેદના પ્રયોગથી મોટા મોટા રોગો મટાડે છે એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આજ અમે योग कराવીએ છીએ। अगले को दे दो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं मुरादाबाद यूपी से राजेश कोहली। स्वामी जी मुझे जॉन्डिस हो गया था और मुझे रातों रात बेहोशी की हालत में जयपुर गोल्डन दिल्ली ले जाया गया। वहाँ मेरा ब्लू रिबन देखा 46। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कौन सा बंदा है, आज भी हिस्ट्री लिखी हुई है जयपुर गोल्डन में कि 46 में डॉक्टर कहने लगा कुछ ही दिन के मेहमान हो आप। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी कि उन दिनों किसी ने आके मुझे बताया कि हरिद्वार में एक बाबा जी हैं, वो योग कराते हैं। जब सब काम कर लिया, तुमने एलोपैथी होम्योपैथी सब कर लिया, तो उनसे भी वो ऐसे ऐसे योग कराते हैं। उनसे मैंने सिर्फ थोड़ा पूछा और धीरे धीरे हॉस्पिटल में योग करने लगा। बाबा जी आज 10 साल हो गए हैं। मेरा जो ब्लू रिबन 46 था, सिर्फ 6 महीने में या 4 महीने में शायद एक आ गया और अब तक एक ही है। लो एकदम नॉर्मल। बाबा जी एक प्रॉब्लम मेरे साथ और थी, मेरे पीठ में दोनों तरफ काले चकत्ते से बन गए थे। एलोपैथी वालों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ 2 महीने गोधन अर्क पिया है स्वामी जी, गोधन अर्क सिर्फ 2 महीने पिया है। और क्योंकि मुझे पीछे दिखता नहीं है, वाइफ ने फोटो खींच के बताया मोबाइल से कि देखो अब थोड़ा सा रह गया है। स्वामी जी आप जो बताते हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं और भगवान आपको जो हमारी उम्र भी लग जाए। तो आ भाई ने 46 અને લલિત ને 42 હતું બ્લુ રિબન। આ જુઓ 46 એમાં તો આદમી માણસ મરી જાય જી। અને એ બધા મટાડી દીધું તો પછી આ સામાન્ય રોગની શું વાત। પણ આ કરવું પડે। इसके आगे भी एक ग्रेड 2 वाला बैठा हुआ था, फैटी लिवर। हाँ बाबा जी को प्रणाम। इसका भी ले लेते हैं। बाबा जी हम 10 साल से हमें पेट में जलन थी और 10 साल से? जी और फैटी लिवर था और ग्रेड 2 बहुत जगह हम दिखा चुके थे, कहीं हमको कोई आराम नहीं मिल रहा था। बिना दवा का पेट का जलन ठीक नहीं रहता था। बाबा जी यहाँ आए तो चमत्कार हो गया मेरे साथ। 15 दिन के अंदर मेरा पेट का जलन खत्म हो गया, 7 kg वेट डाउन हो गया, थायराइड मेरा नॉर्मल हो गया। अच्छा थायराइड भी था? थायराइड भी था मेरा 13 था। और मात्र 2 महीने से हम योगा कर रहे हैं और आने से पहले थायराइड की चेक करवाई हमने तो 3 आ गया मेरा। ये लो एकदम बिलो नॉर्मल। और यहाँ आने के बाद मेरा 75.8 था वजन मेरा, अब मेरा 69 हो गया। जादू हो गया बाबा जी। और वो फैटी लिवर क्या हाल है? फैटी लिवर तो चेक नहीं करवाई है, लेकिन हमें लग रहा है कि एकदम ठीक होगा। अभी फैटी लिवर तो एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, पेट में आने से पहले चेक करवाया था तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आ गया था मेरा 1 महीने के अंदर। तो आ बधा योग आसन, एक आसन 1-2 मिनट थी માંડીને 5-5 10-10 मिनट करवानो છે। महाराज जी को सादर चरण स्पर्श। जी पंकज जी ग्रेड पहले तो कोरोना से पीड़ित हो गया था महाराज जी, ऑक्सीजन सपोर्ट पे चला गया था
लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त लीवर में इन्फेक्शन हो गया, ग्रेड 2 पे चला गया और महाराज जी SGPT 600 चला गया। हाँ, SGPT 600 600। जी जी, और SGOT तो 40 होना चाहिए, 600 पे। 600 पे महाराज जी। डॉक्टर्स तो बिल्कुल घबरा गए थे, लेकिन एक बैठक में जब मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, आपकी नज़र पड़ी थी महाराज जी, और आपने बहुत मतलब आशीर्वाद भी दिया था। उन दिनों महाराज जी कोरोना अभी आया, वो कोरोनिल आया नहीं था, तो भाई अजीत जी, भाई अनिल जी, इन लोगों ने बहुत मुश्किल से उपलब्ध कराया और लगातार फिर प्रयास करता रहा महाराज जी, काढ़ा लेता रहा। और उन दिनों लीव डी और लिवामृत चलते थे, लगातार हमने सेवन की महाराज जी, और अभी SGPT SGOT लगभग 35 और 40 के बीच में है। लो, ग्रे- SGOT SGPT जो 40 होना चाहिए, 30 से 40 के बीच 600 था। 600 महाराज जी, बहुत और ये तो घबराहट की कोरोना बात हो में भी गई मैंने थी। इससे बात किया था, उस समय तो मरणासन हो गया था, और उसका सबसे बुरा असर लीवर, पेनक्रियास, हार्ट, लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर होता है। महाराज जी, बच महाराज गए जी, तो, हाँ? क्रिएटिनिन नहीं तो मर गया क्रिएटिनिन भी अभी तक। क्रिएटिनिन भी महाराज जी 1.9 पे चला गया था, अभी 80 है जी। ओम हाँ, इसको देना पानी गृही को, भस्त्री का, कुछ महाराज जी कपालभाति, आपके चरणों में कोटि कोटि अनुलोम प्रणाम। विलोम, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, आज બધું કરવાનું છે। हाँ, 2003 में मुझे फैटी लीवर हो गया था और स्वयं डॉक्टर होने के बाद भी कई दवाएं लोगों को लिखता था, लेकिन अपनी इलाज नहीं कर पा रहा था। और पहला शिविर योग शिक्षक का हुआ था, वहाँ आकर के आपकी शरण में मात्र 2 महीने योग करके अपने आप को ठीक किया। और उसके बाद महाराज जी, मैं बस्तर के आदिवासी अंचल से हूँ, छत्तीसगढ़ से, और मैंने प्रण लिया आपके संकल्प अनुसार कि जाकर के लोगों को योग सिखाऊंगा। और आज हज़ारों लोगों को फैटी लीवर के साथ साथ अनेक कैंसर आदि रोगों को भी ठीक करवाया है, आप सबके, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में भी हम योग के माध्यम से आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। જે પહેલા ખુદ માંદા હતા ત્યારે બીજાને યોગ શીખવાડે છે, હા? તો આવા એક એક એક્ઝામ્પલ ઇન્સ્પિરેશનલ છે। અને આ રાનીને આપો તો એને તો આટલી બધી બીમારીઓ હતી, એ બધી મટાડીને વિટામિન D, B12, કેલ્શિયમ, પછી થાઇરોઇડ, પછી હાર્ટની પ્રોબ્લેમ, 4 હિમોગ્લોબિન હતો, અત્યારે 14 કરી દીધું। એટલે योग करवाथी અને આયુર્વેદના નાનકડી ઔષધિઓનો ઉપયોગ કરવાથી, અને આ નાનકડા પ્રાણાયામો છે, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, અગ્નિસાર, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, જેને જરૂરત હોય, બીપી વધેલું હોય તો શીત કરીએ, આવા યોગાભ્યાસ કરવાથી અસાધ્ય રોગો તમે મટાડી શકો છો।
5 સેકન્ડ લેવાનું, 5 સેકન્ડમાં છોડવાનું. આજે મેઘ વરસી રહી છે, વરસાદ થઈ રહી છે, વર્ષા યોગ થઈ રહી છે. ચારે બાજુ યજ્ઞશાલામાં યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, મેડિકેટેડ વોટર, મેડિકેટેડ ફૂડ અને ડિફરન્ટ થેરાપીઓ આપીને અને પ્રકૃતિની સન્નિધિમાં ચારે બાજુ ભગવાનના આશીર્વાદની વૃષ્ટિ થઈ રહી છે. ત્યારે વધારે જોરથી વરસવા લાગ્યા. આ ભ્રામરી અને ઉદ્ગીત 5-5 વારથી માંડીને 5-5 મિનિટ સુધી કરવા. અને આવું કરવાથી યોગથી અમે પોતાની પ્રકૃતિથી, મૂળ પ્રકૃતિ, આપણી મૂળ સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ, સાયન્સ અને સંસ્કૃતિ એનો સમન્વય છે આ યોગની સાથે. આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો, પ્રાણાયામ કરજો, આસન ધ્યાન કરજો, ઓંકારનો, અને તમે રોગ નહીં થાય એના માટે યોગ કરજો. રોગ થયા પછી નિરોગી થવા માટે યોગ કરજો. અને નિરોગી થઈને આપણે આ માનવતાના ઉદ્ધાર માટે, કલ્યાણ માટે, ઉપયોગી થવા માટે, યોગી, નિરોગી, ઉપયોગી થવા માટે યોગ કરજો. એબીપી અસ્મિતાઓ પર યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો. તન, મન, આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો.